Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Students, today in this video we are going to learn about the poem No Men Are Foreign, written by James Kirkup. He was an English poet, writer and translator. He was born on 23rd April 1918 in UK and was died on 10th of May 2009. He had written many books. The number of books were written by him are about 30 books, including his autobiographies. He had written under many pen names: James Faulkner, Aditya Jha, Liston and Edward Ryburn. He was a very good person and a good writer. He became the fellow of Royal Literature Society in 1962. Some of his famous books are No More Hiroshimas, I, Of All People, A Poet Could Not But Be Gay, Japan Behind the Fan, White Shadows, Black Shadows. In this poem, the poet has described about the human being who have to think about the brotherhood in the whole world. It's a poem through the poet wants to give a message that people have not to cheat anyone. They have to love each other and create this quality in all his society and all his brothers, all his human beings. So let's read the poem and know what the poet wants to say to us. What is his message for us? Let's read the poem. Have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? We have many ways of thinking of other people as different from us as them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet reminds us of many ways in which we are all the same. We are all human. In this poem, the poet wants to describe that if we all are human, the living base of everybody is same in many ways. We realize that some people are foreigner, but if we think deeply about them, we can realize that they are same as we are. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniform, a single body breathes. In these lines, the poet wants to describe that we have to remember that no men are strange. कभी कहना चाहता है कि कोई भी व्यक्ति strange नहीं है, यानी अजनबी नहीं. No country is foreign, और ना ही कोई देश फॉरेन कंट्री है, क्योंकि विनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स मीन्स जो भी हमारी वेशभूषा होती है, जो भी हम पहनते हैं, अ सिंगल बॉडी ब्रीथ्स, उस वेशभूषा के अंदर ठीक वैसा ही एक शरीर सांसें ले रहा होता है जैसा कि हम ले रहे हैं. लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपॉन, क्योंकि ठीक हमारे ही समान जैसे हम इस पृथ्वी का उपयोग कर रहे हैं, इस पृथ्वी पर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से वे लोग भी जिनको कि हम फॉरेनर कहते हैं, वह भी इस पृथ्वी का उपयोग करते हुए इस पर चल रहे हैं, इस पर कार्य कर रहे हैं. इन अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, और इसी पृथ्वी में जिस तरह से डेड बॉडी होने के बाद, मर जाने के बाद हम पड़े रहते हैं इसी पृथ्वी के अंदर, उसी तरह से वह व्यक्ति भी जिनको हम फॉरेनर कहते हैं, वह भी इसी पृथ्वी के अंदर अपनी ग्रेव में सो जाते हैं, यानी चिर निद्रा में सो जाते हैं, मर जाते हैं,
They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvests, by wars, long winter starved. Their hands are ours, and in their lines we read a labor not different from our own. In these lines, the poet wants to describe the similarity of ours and the other people. They too aware of sun and water. वह कहता है कि जिस तरह से हम सूर्य और पानी के प्रति अवेयर हैं यानी जागरूक हैं, सूर्य, हवा, पानी इनके प्रति जिस तरह से हम जागरूक हैं, आर फेड बाय पीसफुल वाटर्स हार्वेस्ट, और हम शांति के समय में अपनी फसलों से, अपने द्वारा उगाए गए अनाजों से जिस तरह से हम अपने को फीड करते हैं यानी फीड करते हैं, अपने को भोजन कराते हैं, उसी तरह से बाय वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व, जब युद्ध का समय होता है तो लंबे समय तक भूख से पीड़ित रहते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स एंड इन देयर लाइन्स वी रीड अ लेबर नॉट डिफरेंट फॉर आवर ओन। वह कहते हैं कि जिस तरह से हमारे हाथ हैं उसी तरह से अन्य जो पृथ्वी पर निवास करने वाले लोग हैं उनके भी हाथ हैं। जिस तरह से हमारे हाथों की रेखाएं हैं उसी तरह से उनके हाथों में भी रेखाएं हैं। इसलिए जो संघर्ष, जो मेहनत, जो कठिन परिश्रम हमारा है जीवन जीने के लिए, उसी तरह का कठिन परिश्रम अपनी जीविका को कमाने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए वह लोग भी करते हैं। इसलिए हमें किसी भी व्यक्ति को फॉरेनर नहीं समझना चाहिए। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स एंड दैट वेक और स्लीप। वह कहते हैं कि याद रहे कि उनके पास भी उसी तरह की आंखें हैं जो हमारी तरह जागती और सोती हैं। एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव, और इस तरह की शक्ति भी है जिसको प्रेम से जीता जा सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट कैन ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, और हर तरह के स्थानों पर, हर तरह के देशों में एक समान ही जीवन है जिसको कि पहचाना जा सकता है, जिसको कि जिस पर विचार किया जाए, आभास किया जा सकता है और उसको समझा जा सकता है। लेट अस रिमेंबर व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, और साथ ही साथ अंतिम पैराग्राफ्स में वो मैसेज देना चाहते हैं कि हमेशा आपको याद रहे व्हेनेवर वी आर टोल्ड टू हेट आवर ब्रदर्स, कि जब भी हमें हमारे इन भाइयों से घृणा करने के लिए कहा जाता है, इट इज़ आवर सेल्फ दैट वी शैल डिस्पजेस बिट्रे कंडेम। तो वह कहते हैं कि वे व्यक्ति नहीं जो हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं, बल्कि यह हम स्वयं हैं जो कि डिस्पजेस कर रहे हैं, बिट्रे कंडेम्ड। तो हम इन चीज़ों से वंचित हो जाते हैं। किससे? अपने ब्रदरहुड की भावना से। अगर हमें किसी भाई से कोई घृणा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो अगर हम उससे प्रेरित होते हैं तो उस भाईचारे की, उस ब्रदरहुड की भावना से हम निश्चित रूप से वंचित रह जाते हैं। और किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? बिट्रे एंड कंडेम। और हम बुराइयों को आश्रय दे रहे हैं ऐसा करके। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, अगर हम एक दूसरे के खिलाफ आर्म का प्रयोग करते हैं, मीन्स हम एक दूसरे के खिलाफ हथियार उठाते हैं, तो विद्रोहों को और बुराइयों को जगह दे रहे हैं। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। और साथ ही साथ कवि कहना चाहते हैं कि यह मानव की धरती है, दैट वी डिफाइल, जिसको कि हम लोगों ने अपने स्वार्थ और अपनी गंदी भावनाओं से डिफाइल कर दिया है, मीन्स प्रदूषित कर दिया है। आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोरेंस, और हमारी जो दूषित भावनाएं हैं, हमारी एक दूसरे के प्रति जो जलन की भावनाएं हैं, इन्होंने इस धरती की मासूमियत को
कहीं ना कहीं प्रभावित किया है, इस धरती की मासूमियत को समाप्त कर दिया है। इसलिए हे मानव, रिमेंबर नो मेन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज। वो कहना चाहते हैं कि हे मानव, अगर आप इस पृथ्वी को स्वस्थ और सुंदर रखना चाहते हैं तो याद रखें कि कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है और कोई भी देश हमारे लिए अजनबी नहीं है। हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के देश के निवासियों के प्रति भाईचारे की भावना होनी चाहिए और हमारे अंदर यह वसुधैव कुटुंबकम का विचार होना चाहिए कि हमारी पृथ्वी ही, पूरी पृथ्वी एक परिवार है। और अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी पृथ्वी निश्चित रूप से स्वर्ग जैसी बन जाएगी। Dear students, read this poem with the help of this video. We will meet with the next chapter in the next video. Till then, thanks.